A very good morning, dear student. My dear student, as you know that at present cash book chapter is going on, and today we will learn in the cash book that we have done the simple cash book in the previous lecture. Today we will learn the analytical petty cash book. So simple petty cash book we have done, and today we will learn analytical petty cash book, my dear student. First of all, my dear student, we will discuss the these format, my dear student. This is the format. This is a receipts. This is a date. This is a particular, and this is a total amount. My dear student, these four columns are very important, and these columns already we have understand in the simple petty cash book, my dear student. But now we will learn that this conveyance column, cartage column, stationery column, postage column, and this is a very important sundry column. It means if any expenses of stationery, the stationery expenses will come here, postage expenses will come here, cartage expenses will come here. But if there is no any column, so suppose there is no column of wages, there is no column of repair, so it will come in the sundries, my dear student. And two column is input CGST, input HGST, and input IGST. It is available in the question, my dear student. तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज एनालिटिकल पैटी कैश बुक. सबसे पहले तो आपको अपने सिंपल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट बनाना है, एंड देन यू विल चेक डेट व्हाट एक्सपेंसेस आर कॉमन. जो भी अगर एक से ज़्यादा कोई एक्सपेंसेस है तो उनके लिए आप माय डियर स्टूडेंट सेपरेट कॉलम बना सकते हैं उन एक्सपेंडिचर्स के लिए. तो दिस इज अ एनालिटिकल पैटी कैश बुक. सपोज माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द कन्वेंस. टैक्सी फेयर, बस फेयर, रिक्शा फेयर. तो दीज आर द ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कन्वेंस. तो माय डियर स्टूडेंट, इन द टोटल पेमेंट में तो वो आएंगे ही आएंगे, साथ में आप उनको कन्वेंस में भी लिखते हुए चले जाएंगे. तो दिस इज अ एनालिटिकल पैटी कैश बुक. माय डियर स्टूडेंट, नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन देयर इज that prepare an analytical petty cash book on the Impress system from the following. Number first is a received for petty cash. January 1st received for petty cash, and amount is, my dear student, 10,000. If we are receiving the 10,000 rupees, now I will come here in the solution. I will come here, and this is the solution, my dear student. My dear student, first of all I will write to cash January 1st, and in the receipts column I will write the 10,000 rupees. तो एक ही बार पैसा यहाँ पर रिसीव्ड होगा, टू कैश. इसके बाद तो सब कुछ हमें बाय में लिखना है, बाय एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें लिखना है, और उसकी अमाउंट वी विल राइट इन द टोटल पेमेंट कॉलम, माय डियर स्टूडेंट. तो माय डियर स्टूडेंट, ओनली वन टाइम कैश रिसीव्ड फ्रॉम द मेन कैश बुक, द 10,000 विल बी रिसीव्ड. नाउ वी विल रेडी टू पे. ऑन द सेकेंड, पेड मेट्रो फेयर, अमाउंट ₹50. 50 रुपये हमने मेट्रो फेयर के दिए हैं. माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई विल कम ऑन द सॉल्यूशन. इन द सॉल्यूशन क्लियरली दे आर सेइंग दैट बाय कन्वेंस वी कैन राइट द मेट्रो फेयर ऑल्सो. हम यहाँ लिख सकते थे बाय मेट्रो फेयर, बट मेट्रो फेयर इज अ कन्वेंस आने जाने के खर्चे, एंड अमाउंट इज अ 50 रुपीज़. बट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमने सिंपल पैटी कैश में भी सीखा था, लेकिन यहाँ इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग the analytical petty cash book, it means we have to maintain one column of conveyance, and conveyance amount 50 रुपीज़, और उसको बिल्कुल इसी लाइन में 50 रुपीज़ आप यहाँ पर भी निकालिए, माय डियर स्टूडेंट. दिस इज़ अ वे. बट माय डियर स्टूडेंट, इन कॉलम्स को आप बाद में बनाइए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंप्लीट दिस क्वेश्चन. आपको अपने कुछ लाइन्स कंप्लीट कर लेनी चाहिए, माय डियर स्टूडेंट. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट योर कॉलम, फर्स्ट कॉलम इज़ अ रिसिप्ट्स, date, particular, and total amount. These 4 columns, और इनको आप सिंपल पैटी कैश में सीख चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंप्लीट दीज 4 कॉलम, देन यू शुड एनालिटिकल एनालाइज. बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेक कि व्हाट आर द कॉमन एक्सपेंसेस, then you will create the expenses column. Suppose many times there is a conveyance, so that's why you will maintain conveyance column. Many times you are searching, there is a cartage, then you will record the cartage column. If you many times there is a sundry, stationery, तो
मैनी टाइम्स मीन्स अगर एक से ज़्यादा टाइम भी है तो यू शुड मेंटेन दिस कॉलम. एंड माय डियर स्टूडेंट, इफ़ वी आर चेकिंग डेट एक से ज़्यादा बार अगर पोस्टेज आया है तो माय डियर स्टूडेंट यू शुड मेंटेन द पोस्टेज कॉलम. बट माय डियर स्टूडेंट, हियर you can check here that wages, this is only one time. रिपेयर, दिस इज़ ओनली वन टाइम. ये दो खर्चे एक एक टाइम आए हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, अगर एक एक टाइम आए हैं तो इफ़ यू डोंट वांट टू रिक्वायर्ड, अगर नहीं चाहते आप, इफ़ यू डोंट वांट टू प्रिपेयर दीज कॉलम्स, तो डजेंट मैटर, इनकी जगह आप बना सकते हैं सन्ड्रीज. SUNDRIES, सन्ड्रीज. इन द सन्ड्रीज यू विल राइट द वेजेस एंड, तो एक कॉलम बनाएंगे सन्ड्रीज का और उसके अंदर ही आप 600 और 1500 उसी एक कॉलम में आप इन दोनों अमाउंट को लिख सकते हैं. बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग द वेजेस कॉलम तो वेजेस विल कम इन द सन्ड्री. तो माय डियर स्टूडेंट, बट इन दिस क्वेश्चन दे आर नॉट मेंटेनिंग द सन्ड्री कॉलम, बट सन्ड्री कॉलम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम एंड यू शुड मेंटेन, माय डियर स्टूडेंट. तो माय डियर स्टूडेंट, वी कैन चेक दैट दीज ऑल आर द एक्सपेंसेस एंड दिस अ बाय, एंड यहाँ पर हमने उसे लिख दिया है. बट एनालिस्टिकल कर रहे हो तो माय डियर स्टूडेंट, इफ़ दिस इज अ कन्वेंस तो इन द कन्वेंस कॉलम, इफ दिस इज अ कार्टेज तो इन द कार्टेज कॉलम, 500 रुपीज़ फॉर पोस्टेज तो इन द पोस्टेज कॉलम. माय डियर स्टूडेंट, इन द लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन में आपको इसे लिखना है. व्हेन योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीट, माय डियर स्टूडेंट, व्हेन योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीट, बिकॉज ऑलरेडी यू अंडरस्टूड द सिंपल पैटी कैश बुक. तो बिल्कुल सिंपल पैटी कैश बुक की तरह आपको ये सब चीज़ें करनी है. बाय कार्टेज, बाय पोस्टेज, बाय वेजेस, बाय स्टेशनरी, बाय इनपुट, CGST, SGST, by conveyance, by repair, everything. And in the total amount column, you should write the amounts also. So when you will complete, my dear student, then first of all, you will total. The total is a 10,000 rupees. Then this total, you have to, total you should transfer here, my dear student. This 10,000 rupees will come here. And then you should total of it also. This total, this expenditure total is of 5,572 rupees, my dear student. Then you should deduct 5,572 रुपये के खर्चे हुए हैं and total amount is a 10,000 rupees. So my dear student, at present the remaining balance CD is a 4,428. And my dear student, what is the impress system? Impress system says that how many rupees you have spent? 5,572. And what is the balance now? 4,428. So my dear student, when you will transfer this balance in the next week, 4,428, this is a 2 balance BD. Then कितना खर्च कर दिया? 5,572 जो खर्च कर दिया है टू कैश अकाउंट. तो फ्रॉम द मेन कैश बुक फिर से ट्रांसफ़र करा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीक भी आपके 10,000 रुपीज़ हो जाए. तो दिस इज़ अ इम्प्रेस सिस्टम, माय डियर स्टूडेंट. एंड इफ़ यू आर डूइंग द एनालिटिकल पैटी कैश बुक, देन दिस इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको हर कॉलम के अलग अलग टोटल भी करना है. इसका टोटल करेंगे तो आएगा माय डियर स्टूडेंट 950. इसका टोटल करेंगे तो आएगा माय डियर स्टूडेंट 600. अलग अलग टोटल करना. और जब ये सारे टोटल हो जाए माय डियर स्टूडेंट, तो यू विल चेक डेट फ्रॉम दिस साइड द आंसर इज़ 5,572. और इन सब का भी टोटल करके देखेंगे तो 5,572 माय डियर स्टूडेंट. तो ये सारे एक्सपेंसेस भी अपनी अपनी कॉलम्स में और इन कॉलम का टोटल यहाँ पर चेक करेंगे माय डियर स्टूडेंट. तो फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो द टोटल विल बी शुड बी same, my dear student. So this is the analytical petty cash book. I hope you understood, my dear student. So thank you very much and God bless you, my dear student.